We are done with the monetary policy. Now we are going to start fiscal policy. Fiscal policy is under the hands of Government of India, and monetary policy is under the hands of RBI, Reserve Bank of India. Fiscal policy. Fiscal policy deals with the fiscal policy deals with the expenditure and receipts of the government. Government के पास कितना पैसा आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट पैसा लाएगी, दैट इज द रिसीट पार्ट. समझ आ रही बात. उसके बाद कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, रिसीट पार्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट. And the combination of this receipt part and expenditure part is known as annual financial statement of Government of India. This is known as budget. Under Article 112 of the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause or to lay the budget in the Parliament. ठीक है? As budget is the money bill, it will be laid first in Lok Sabha. ठीक है? क्योंकि money bill is always introduced and laid in Lok Sabha first. And on behalf of President, it is done by the Union Finance Minister. ठीक है? तो ये बजट के बारे में वो टेक्निकलिटी. It contains the actual receipts and expenditures of previous year. ठीक है? और इस साल के, अगले साल के estimated क्या estimated receipts and expenditures आएंगे वो सब. And that political part कहाँ पे क्या introduce होगा, various cut motions involved, application of gluten, this vote on account. ठीक है, एवरीथिंग चार्ज एंड एक्सपेंडिचर पे कब होगा, दैट वी हैव डन इन पॉलिटी. यहाँ पे वैसा सीन नहीं है. यहाँ पे यू हैव टू सी बजट डॉक्यूमेंट है क्या उसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव फाइनेंस बिल. बजट इज इन टू पार्ट्स, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल. अप्रोप्रिएशन बिल, दिस डील्स विद द एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, that the money which the ministries are demanding, that has to be taken out from the consolidated fund of India, and this is the permission for that. यहाँ से finance bill है that how we are going to get the this money, how government of India is earning, कहाँ कहाँ से taxes से आएगा, कहाँ कहाँ से non tax से आएगा, क्या हमने किसी को लोन दिया है उसके पैसे वापस इस साल आने वाले हैं, इंटरेस्ट आने वाला है, क्या आने वाला है. Everything is under this finance bill. Taxation structure कैसा टैक्स रहेगा, कौन सी स्लैब रहेगी, इनकम टैक्स को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स का क्या होगा. ठीक है, एवरीथिंग इज है. दिस इज रिलेटेड टू हाउ मच रेवेन्यू वी आर गेटिंग, एंड दिस इज रिलेटेड टू हाउ मच एक्सपेंडिचर वी आर इनकरिंग. ठीक है, appropriation bill deals with expenditure and the finance bill deals with the revenue. First appropriation bill is passed, then finance bill is taken up. Okay, and when both the bills are passed by both the houses of parliament, it is sent to the President of India. He has to give his assent by convention because this is a money bill, and by constitution he gives assent to constitution amendment bill. ठीक है, बाकी उन ordinary bills में he has veto powers. इतना हमें पता है. ठीक है, now we will divide this budget into revenue part and expenditure part. समझा रही बात. रेवेन्यू पार्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट, पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, और बजट की सारी डिटेलिंग देखेंगे हम वन बाय वन. बट बिफोर गोइंग टू दैट थिंग, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं. ठीक है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट, आउटकम बजट, मतलब डेफिनेशंस, ये होता क्या है. ठीक है, फर्स्ट वी विल कंप्लीट दोस डेफिनेशंस. दो तीन लाइंस की है, उसके बाद हम मेन पार्ट पे पहुंचेंगे बजट के. ठीक है, फर्स्ट यू राइट 2-3 लाइंस. In public finances, we study receipts and expenditures of the government. In public finances, we study receipts and expenditures of the government. We study receipts and expenditures of the government.
These finances are maintained by the government. These finances are maintained by the government. These finances are maintained by the government. These finances are maintained by the government in the form of annual financial statement. In the form of annual financial statement, which is commonly known as budget. Which is commonly known as budget. Which is commonly known as budget. We are not going to discuss anything regarding the technicality of budget here. ठीक है? कौन president क्या article के under, nothing like that. This has already been done. इसमें हम लिखेंगे अब next line. Based on the difference between receipts and expenditures, कितना आया और कितना खर्च हुआ, based on the difference between receipts and expenditures, the budget can be of different forms. The budget can be of different forms as stated below. The budget can be of different forms as stated below. पहला बैलेंस्ड बजट, नाम से ही पता चल रहा होगा, where receipts are equivalent to expenditures. This is known as balanced budget. Where expected receipts, कि आप क्या expect कर रहे हो कि आपका revenue कितना आएगा, expected receipts equivalent to anticipated, कि कितना शायद हमें खर्च होगा, anticipated expenditure. Where expected receipts of the government of India are somewhat equal to the anticipated expenditure of the government of India, that budget is known as balanced budget. ठीक है? किसी भी डेवलपिंग कंट्री में आप ऐसा वाला बजट नहीं देखोगे. डेवलपिंग, because developing country has to incur expenditure in order to create assets for the welfare of the people. ठीक है? हमेशा हम दूसरी टाइप का बजट वहां पे देखेंगे जो इसके बाद हम देखेंगे. ठीक है? You write this balanced budget. A government budget is said to be balanced. A government budget is said to be balanced. A government budget is said to be balanced if the expected expenditure of the government, if the expected expenditure of the government, if the expected expenditure of the government is equal to the anticipated receipts of the government, is equal to the anticipated receipts of the government, in a particular financial year, ठीक है, in a particular financial year. Next, surplus budget. सरप्लस बजट, इसका क्या मतलब है? जहां पे रेवेन्यू इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर, मतलब आपके पास पैसा बचता है, सरप्लस बजटिंग. राइट, ये कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं बजट में क्या है टेक्निकलिटी, वो आपको याद रखना है. ठीक है? राइट, सरप्लस बजट. A budget is said to be surplus. A budget is said to be surplus when the expected revenues surpass the expected expenditure. For a particular financial year.
ठीक है, for a particular financial year. It implies that government's earning from taxes and other resources. It implies that government's earning from taxes and other resources is greater than the amount government spends. This budget shows the financial soundness of the government. ठीक है, full stop. Surplus budgets are used at the time of high inflation. गवर्नमेंट चाहेगी स्पेंड करना, मनी लिक्विडिटी इंक्रीज करना ना, ठीक है. सरप्लस बजट्स क्या लिखा, surplus budget are used at the time of high inflation. देखो क्या करेंगे, it is surplus budget, it means revenue is greater than expenditure. If there is inflation, they will resort to surplus budget. It means the government will try to incur more receipts than expenditures. How government will try to incur more receipts? By increasing the tax rates. इससे क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट खुद भी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर पार्ट गोज डाउन, टैक्स रेट इंक्रीजेस, इन हैंड मनी एट योर डिस्पोजल डिक्रीजेस. समझ में आ रही है बात? तो इट इज अ मेजर ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. आरबीआई अपना अलग से करता है मॉनेटरी पॉलिसी से, बैंक्स के साथ डीलिंग, ठीक है, ये गवर्नमेंट करती है आपके साथ डीलिंग, ऐसे. यू राइट दिस एज वेल. In this type of budget scheme, government imposes higher taxes and incurs less expenditure. Full stop. It has an effect of withdrawal of money from the economy. It has an effect of withdrawal of money from the economy. समझ आ रहा है क्या लिख रहे हो? It has an effect of withdrawal of money from the economy. Next, deficit budget. As the name speaks itself, deficit means where the expenditure part is more than your revenue parts. Yeah, right. A deficit budget is when expenditure surpasses. A deficit budget is when the expenditure surpasses. When the expenditure surpasses the revenue. Expenditure surpasses the revenue for a particular year. Expenditures are more than revenues. It means there is a cash gap. हमारे पास 100 रुपया है, 150 रुपया खर्च हो रहा है, 50 रुपये इज द कैश गैप. ये लाना है ना कहीं से, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? बाय बोरोइंग दिस. तो यहाँ से ये लोन स्टार्ट होगा, लोन का मसला, चाहे आरबीआई से ले ले, किसी कमर्शियल बैंक से ले ले, वर्ल्ड बैंक से ले ले, अपने बॉन्ड सेल करे, जो करना है करे, ठीक है, लेकिन इस डेफिसिट को फुल करेगा लोन लेकर. फिर इस लोन को अदा करना है आगे, उस पे इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है. इस चीज को दिमाग में रखो, इस चीज के साथ हम आगे खेलने वाले हैं.
A deficit budget is when expenditure surpasses the revenue for a particular year. It means that the imposed taxes and other receipts. It means that the imposed taxes and other receipts. It means that the imposed taxes and other receipts are not enough. Are not enough to cover the expenses of the government. Are not enough to cover the expenses of the government. ठीक है? To cover the expenses of the government. Modern economists vouch, V-O-U-C-H. Modern economists vouch for the usefulness of a deficit budget. Modern economists vouch for the usefulness of a deficit budget. Full stop. They say that a deficit budget can fasten the country's economic growth. A deficit budget can fasten the country's economic growth. क्योंकि गवर्नमेंट को पता है मेरा कौन सा सेक्टर है जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन दैट सेक्टर, कैन फास्टन the country's economic growth if used creatively through asset creation. अभी हम देखेंगे इस चीज को, अगर किसी और इस 50 रुपए को अगर हमने एसेट क्रिएशन के लिए यूज किया तो हमारी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट है. अगर इसी 50 रुपए को किसी और चीज के लिए यूज किया, which we are going to see, तो उस केस में दिस इज अ प्रॉब्लम. ठीक है? इनको give the heading some other types of budgets, ये भी इंपॉर्टेंट है. That were on the basis of revenue and expenditure, ये तीन. ठीक है? वो ज्यादा, ये कम और बैलेंस्ड. Give the heading other types of budgets. Number 1, zero-based budgeting. Zero-based budgeting. ये क्या होता है, ये zero-based budgeting? ठीक है? Zero-based budgeting. This concept was given in 1924 by Hilton Young. वही आपका, जिसके कमीशन की रिपोर्ट पे आरबीआई बना था. ठीक है? In 1924 under his command this concept was given, zero based budgeting. इसमें क्या करते हैं, इसमें this is ministry, for example ministry of coal. ठीक है? लास्ट ईयर इस मिनिस्ट्री ने हमसे 10,000 करोड़ लिए थे बजट में किसी चीज के लिए. इस साल इसको वैसा ही एसेट क्रिएशन करना है. बात समझ आ रही है? और ये हमसे मांग रहा है 11,000 करोड़ इस टाइम पे. अब उसी चीज के लिए कहीं और कुछ क्रिएट करना है. वैसा ही इस जीरो बेस्ड बजटिंग में हम पुराना आउटकम नहीं देखेंगे, हम इस साल की नई कैलकुलेशन करेंगे रेट्स की. Without zero base, without having any base in mind, without seeing the previous year, we will keep in mind the new rates, the new inflation. जो भी इस साल inflation हुआ होगा वो भी ऐड करेंगे, नई रेट्स जो मार्केट में होंगे वो भी ऐड करेंगे. न्यू रेट्स के तहत ये बजट आपको प्रोड्यूस होगा. नई रेट्स, पुराना इसमें कुछ मेरे दिमाग में नहीं रखना है. दिस इज नोन एज जीरो बेस्ड बजटिंग. नया सारा इसमें कैलकुलेट होने जा रहा है. अगर हमने पिछले साल कुछ लाया है उसकी आज की रेट देखेंगे, अब क्या है मार्केट में, उस पे इन्फ्लेशन क्या आई है, अगर उसमें डिक्रीज भी रेट हुई होगी वो भी ऐड करेंगे. जीरो बेस्ड बजटिंग, कीपिंग नो बेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, न्यू कैलकुलेशन फॉर दिस बजट इन दिस फाइनेंशियल ईयर. दिस इज नोन एज जीरो बेस्ड बजटिंग. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है. ठीक है? द
The concept of zero-based budgeting. The concept of zero-based budgeting. The concept of zero-based budgeting was advocated in 1924. Was advocated in 1924. Was advocated in 1924 by British Budget Authority. By British Budget Authority, Edward Hilton Young. Edward Hilton Young. Edward Hilton Young. Full stop. In this method of budgeting, in this method of budgeting, read what you are writing, ठीक है? In this revise भी यहीं पे करके जाओ. In this method of budgeting, all expenses are evaluated. All expenses are evaluated every time a budget is made. All expenses are evaluated every time a budget is made. Full stop. It requires expenses. It requires expenses to be justified. It requires expenses to be justified. It requires expenses to be justified for each new period. For each new period. Here, full stop. The concept of zero-based budgeting. The concept of zero-based budgeting was introduced in India. The concept of zero-based budgeting was introduced in India by the Department of Science and Technology. By the Department of Science and Technology in 1983. By the Department of Science and Tech by 1983. ठीक है? Full stop. It starts from zero base. It starts from zero base. It starts from zero base. And every function of the government is analyzed for its needs and costs. And every function of the government is analyzed for its needs and costs. It is a project-oriented method of budgeting. It is a project-oriented method of budgeting. वो नहीं आपको लोकल एग्जांपल में समझ आएगा ऐसे. वो ठेकेदार जब ठेका लेते हैं किसी चीज का, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, A क्लास वैसा कुछ, they do these expenses and expenditures everything बेस से स्टार्ट करते हैं. नई बिल्डिंग, आपने कितनी भी बिल्डिंग्स बनाई हो इससे पहले, उसके साथ ये मसला नहीं है. हमने ये नई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वी विल फ्रॉम स्क्रैच सी हमें कितना खर्चा आएगा, उसी हिसाब से हम बिड देंगे आगे. ठीक है. नेक्स्ट, आउटकम बजट. आउटकम बजट. ठीक है. आउटकम बजट, नाम क्या है? आउटकम बजट. आपने पिछले साल लिया हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा, अब आपको और चाहिए कहीं और बनाने के लिए. पहले हमें दिखाओ जो आपने पिछले पैसे लिए उसका आउटकम क्या रहा. कहाँ है हॉस्पिटल? सर यहाँ है. क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है? जिस इंटेंशन के लिए खाली हमें ढांचा नहीं बनाना था ना, वी नीड टू सर्व द पीपल, हो रहा है वो कि नहीं. इफ द आउटकम इज बेस्ट, ठीक है, तो तब आपको हम ये बजट में आपके नए प्रोजेक्ट के लिए भी पैसे अलॉट करेंगे. अगर आपका पुराना ही अभी फंक्शन में नहीं आया है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपने पैसे लिए इमारत ही नहीं है, आपने पैसे लिए जिस चीज के लिए वैसा कुछ आपने बनाया नहीं है, तो उसी हिसाब से आपके पैसे कट किए जाएंगे. आपको पैसे या तो नहीं दिए जाएंगे नई चीज के लिए, पहला पुराना हिसाब देखो. ठीक है. दिस इज नोन एज आउटकम बजटिंग. शो अस द आउटकम.
आपने पिछले साल भी पैसे लिए, क्या किया उसका? फिजिकल यूनिट्स को एसेस किया जाएगा सीधे। आपने रोड के लिए पैसे लिए, कहाँ है रोड? सर ये देखेंगे हम रोड, हाँ हाँ आपने बनाया, टेक नाउ, लो और मनी, अब बनाओ दूसरे साइड से जहां से आपको चाहिए। ठीक है, आउटकम बेस्ड बजटिंग। It was introduced in the year 2005. It was introduced in the year 2005. It was introduced in the year 2005. Full stop. It analyzes the progress done. It analyzes the progress done. It analyzes the progress done by each ministry and department. By each ministry and department of government. Of government. Against its budget outlay. Against its budget outlay. Against its budget outlay. During the year. During the year. The major feature of the outcome budget is that the major feature of the outcome budget is that the major feature of the outcome budget is that it measures the outcome in terms of physical units. It measures the outcome in terms of physical units. हमें दिखाओ सीधे, रोड है तो कहाँ है, बिल्डिंग है तो कहाँ है, ठीक है? In terms of physical units. For example, the performance of Ministry of Road Transport and Highways. For example, the performance of Ministry of Road Transport and Highways. Ministry of Road Transport and Highways can be measured in the number of kilometers of highway construction in a year. In the number of kilometers of highway construction in a year. उसी हिसाब से हम आपको अगले साल पैसे देंगे। Next, gender budgeting. Gender budgeting. ठीक है, ये जेंडर बजटिंग नाम से ही पता चलता है that government will set aside certain expenditures for the welfare of women. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वुमन, बजट में ही अलग से थोड़ा सा पैसा किसके लिए, जो खाली और खाली किस पे स्पेंड होगा, वुमन पे. It's known as gender-based budgeting. It was started in 2005-06 in India. तो ये भी अब होता है gender according. This involves gender-based assessment of the budget. This involves gender-based assessment of the budget. This involves gender-based assessment of the budget. Full stop. Through this budget, the government declares the amount. The government declares the amount to be spent on the welfare and empowerment. Through this budget, government declares the amount. Declares the amount to be spent on the welfare and empowerment. On the welfare and empowerment, related schemes for women. Related schemes for women. ठीक है, it is a powerful tool. It is a powerful tool to promote gender equality. It is a powerful tool to promote gender equality. Whenever you write a question social justice में,
या सोसाइटी में ऑन वुमन, वहां पे आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अगर लिखने पड़े, ये होना ही होना चाहिए आपके आंसर में। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जेंडर बेस्ड बजटिंग, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर वुमन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन बजट 2005-2006। It was introduced in India in the budget 2005-2006. ठीक है, this was about what? Budgets, different types of budgets. Now we will analyze this annual financial statement of government of India. अंदर इसके होता क्या है, ठीक है। Two accounts mainly we are going to study with respect to what? Budget. इसमें दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं आपके बजट में। वन इज रेवेन्यू अकाउंट, अदर इज कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट होता क्या है? इट डील्स विद डे टू डे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के साथ जो डील करेगा दैट इज रेवेन्यू। कैपिटल वंस इन अ वाइल, expenditures incurred और once in a while payment received। समझ आ रही है बात? once in a while payment received और once in a while expenditure incurred। आपको एम्स बनाना है कश्मीर में, ये एक बार बनेगा कि रोज बनेगा? एक बार, ठीक है, once in a while। आपने लोन दिया किसी को, वो आपको वापस आएगा ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट। ये रोज रोज हमेशा के लिए वापस नहीं आने वाला, तो ये एक बार आपको वापस आएगा। Once in a while expenditure incurred, once in a while revenue generated is termed into capital account। and day to day expenses आपकी salaries है, आपका fuel है, government vehicles का, pensions है, day to day ये देना ही देना है आपको, it's not once in a while, ठीक है। तो this accounts into revenue account और this once in a while terms are in capital account, ठीक है। ये लार्ज कैप के बाद होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। समझ आ रही है बात? कैपिटल अकाउंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फर्स्ट वी विल सी रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में वी विल सी रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इट मींस पैसा आ कहां से रहा है? जो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। पैसा खर्च कहां कहां पे हो रहा है? जो रेवेन्यू अकाउंट से होगा। हर ऐसे ही हैफेजर्डली हम पैसे खर्च नहीं करते। वी मेंटेन अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन सा पैसे जाने वाला है, वहां से कौन कौन सा निकलने वाला है, किस चीज के लिए। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट से वापस क्या आएगा, उसी हिसाब से हम अपने बजट को एनालाइज करते हैं। देन वी सी हमारे बजट में डेफिसिट है या नहीं। अगर डेफिसिट है तो कौन सा है? फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है। अगर है तो उसको कम कैसे करें, एंड विच डेफिसिट इज मोर हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, होता हर एक डेफिसिट हार्मफुल ही है, क्योंकि ज्यादा खर्चा, ज्यादा इनकम कम आ रही है, लेकिन देयर आर स्टेज, वो आके देखेंगे हम। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फर्स्ट यू राइट दिस थिंग, यू राइट, हम एक टेबल बनाएंगे, इससे ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको, एज कंपेयर टू राइटिंग इट इन पैराग्राफ फॉर्म। टेबल से ये ज्यादा दिमाग में रहेगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इधर हम टर्म्स लिखेंगे ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इधर क्या आता है और इधर क्या आता है, क्योंकि इसी को आगे एनालाइज करना है। जब यही याद नहीं होगा आगे कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है, यू राइट कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ बजट. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बजट में यू राइट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया. The union budget of India is divided into two major heads. The union budget of India is divided into two major heads. Is divided into two major heads. ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी चार्ट है, इसके बाद हमें असली बनाना है. ठीक है, बजट रिसीट्स. बजट रिसीट में आपका आएगा रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, हो गया इतना. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट टेबल. बजट, बजट की रिसीट्स, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है बजट में, जनरल में. और उसमें फिर वी हैव टू सेपरेट हेडिंग्स. रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आ रहा है और कैपिटल रिसीट्स में क्या आ रहा है. डे टू डे रिसीट्स में एंड वंस इन अ वाइल. डे टू डे एक्सपेंडिचर एंड वंस इन अ वाइल एक्सपेंडिचर. ठीक है, इट्स ब्रॉड हेडिंग. अब इनमें हमें जाना है, इनके अंदर. समझ आ रही है बात. यू राइट बजट ऐसे ही, रिसीट्स, बजट्स ऐसे ही, उसके बाद रिसीट्स. ठीक है, इसको फर्दर यही रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स में यू हैव फर्दर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. रेवेन्यू रिसीट्स में you have tax revenue and non-tax revenue. In tax revenue you write like this कि कौन कौन सा टैक्स पार्ट इसमें इंक्लूडेड है. राइट, इस टैक्स में भी यू हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? नाम सुना है कभी? हाँ, बोलो फिर. जो डायरेक्टली दिया जाता है. अच्छा, जैसे फॉर इनकम टैक्स है हमारा. हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. जैसे सपोज हमने मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमने एडमिशन किया किसी स्कूल में. ठीक है, अब वहाँ पे जो हमें टैक्स, हाँ, द बर्डन, देखो डायरेक्ट टैक्स की शॉर्ट की, द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन हु इज पेइंग दिस. ठीक है, एक तो उसी को पे करना है और पहुंचाना भी है. इनडायरेक्ट टैक्स में पे कोई और करेगा, पहुंचाएगा गवर्नमेंट के पास कोई और. दैट इज इनडायरेक्ट. जैसे आप बिस्किट खरीद रहे हो
आपने बिस्किट 10 रुपए का खरीदा, उस पे जीएसटी लगा हुआ है। आपने लेकिन वो दुकानदार को पैसे 10 रुपए दिए, वो दुकानदार उसको देगा जिसने उससे माल लिया, वो देगा अपनी कंपनी, जहां कंपनी फाइल करेगी जीएसटी, आपके द्वारा जो दिया गया टैक्स वो कंपनी आपके ब्याह पे कौन देगी? गवर्नमेंट को। लेकिन देना आपको है, गवर्नमेंट के पास कोई और लेके जाएगा। What about direct tax that you have to give and you have to make it to the government? ठीक है, that is direct tax. हमारे पास बजट है, रिसीट्स, पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, उसमें है रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, once in a while and day to day. Day to day में we have tax revenues and non-tax revenues. Tax revenues में you have direct taxes and indirect taxes. Write in the direct taxes. Income tax. हाँ, डायरेक्ट टैक्स में लिखो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐसे बनाओ ना, फिर ऐसे ऐसे इधर लिखो इनकम टैक्स, फिर ऐसे दूसरा इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब कुछ हमें टैक्स स्ट्रक्चर में पढ़ना है। इनकम टैक्स पढ़ो पहले, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, एस्टेट ड्यूटी, समझ आ रही है बात? इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्लीज राइट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या लिखा? सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के बगैर जो आपने ये ऊपर वाले 3 या 4 लिखे ना, लाइक दिस, इसको लिखो ऐसे, दे आर नाउ द पार्ट ऑफ जीएसटी। वही है जीएसटी। जीएसटी में ये सारे टैक्सेस सबस्यूम हो गए हैं। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे, अब ये जो अलग अलग लेते थे हम पहले, अब यही है जीएसटी, ठीक है। दीज आर अंडर नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। समझ आ रहा है क्या लिखा है? ये अब जीएसटी के अंडर है। सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अंडर जीएसटी, सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, दिस वॉज रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो कहां जाता है? टैक्स रेवेन्यू रिसीट अकाउंट में। अब और कहीं से भी पैसा आता है, वो जाएगा नॉन टैक्स लेकिन रेवेन्यू अकाउंट में ही। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, कौन कहां जा रहा है, ठीक है, कौन सा पैसा किस अकाउंट में जा रहा है, यहां इस अकाउंट में कौन सा पैसा जाएगा, फिर इस अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर पार्ट है, इसमें खर्चा किस पे होगा, इस अकाउंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, खर्चा कहां कहां पे होगा, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यू राइट नॉन टैक्स रेवेन्यू के नीचे ऐसे ही उसमें क्या क्या आएगा, नॉन टैक्स, ओके। इंटरेस्ट रिसीट्स, आपने लोन दिया है ना, उसमें इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट रिसीट्स, मैंने पूरे लोन का अमाउंट लिखा कि खाली इंटरेस्ट लिखा? इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट लिखा। इन चीजों को बारीकी से दिमाग में रखो। इंटरेस्ट लोन का कहां आएगा? नॉन टैक्स। वो जो लोन की रिकवरी जो होगी वो देखेंगे वो कहां आएगा, ठीक है, वो यहां आता है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इंटरेस्ट इज हियर, इंटरेस्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। हमारे पास फॉर एग्जांपल है कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी हैव आरबीआई। जो भी प्रॉफिट्स होगा गवर्नमेंट की तरफ एक शेयर जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ शेयर जाएगा। वो शेयर वाला पैसा कहां जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। समझ आ रही है बात?
in non-tax revenue. Next, fees and fines. ट्रैफिक फाइन, कोई भी फी आप दे रहे हो, फीस एंड फाइन्स. नेक्स्ट, एक्सटर्नल ग्रांट्स, वर्ल्ड बैंक, IMF. ईशा लोन कि ग्रांट? ग्रांट है ये, ग्रांट. ग्रांट वापस छुना संजू. समझ में आई बात? लोन इज समथिंग एल्स, ग्रांट इज समथिंग एल्स. लोन कहीं और जाएगा, ठीक है. ये ग्रांट है, अभी को हो गया. This is your tax revenue and this is your non-tax revenue. टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स में क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ रहा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आ रही है. यू हैव योर इंटरेस्ट, यू हैव योर प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, यू हैव योर फीस एंड फाइन्स, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रांट्स, एवरीथिंग इज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू. कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स. Loans and borrowings. Loans and borrowings. Capital receipts में loans and both external as well as internal. RBI से लो, कहीं और से लो, या वर्ल्ड बैंक से लो, लिखो ना इसको. Both external as well as internal. Both external as well as internal. समझ में आ रही है बात? सेकेंड, डिसइन्वेस्टमेंट. ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है इन्हीं दिनों, पिछले साल 2 साल पहले. व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसइन्वेस्टिंग इन एवरीथिंग. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट. अपने शेयर्स जो 51% शेयर्स थे, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी, गवर्नमेंट बेच रही है. वो पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कैपिटल रिसीट में. क्यों? ये वंस इन अ वाइल है, रोज रोज नहीं आने वाला. आज एयर इंडिया से शेयर बेच दिए, अब कहां के शेयर उसके पास है कि रोज रोज बेचेगा? बेच दिए तो हो गया खत्म. वंस इन अ वाइल डिविडेंड है ना, सॉरी, डिसइन्वेस्टमेंट. थर्ड, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स. Sale of government assets. What is the difference between sale of government asset and disinvestment? Disinvestment means shares का काम करना. Sale means property बेच देना. Asset, जमीन. समझ में आ रही है बात? Property को बेच देना, बेच दो. एक होता है shares में कमी कर देना. That is disinvestment. दूसरा होता है property बेच दो. वो पैसा कहां जा रहा है? कैपिटल रिसीट्स में. समझ आ रही है बात? जो हमने एक्सटर्नल ग्रांट्स लिखे ना, हाँ. जो हमने, ये भी तो वंस इन अ वाइल, रोज रोज थोड़ी मिलते हैं. ये जो एक्सटर्नल ग्रांट्स होते हैं, ये आप ही का है. आपको इस तरीके से इसको देखना है, ये आप ही का. यू डोंट हैव टू पे. आगे चलो, मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है. इट इज योर्स. एक ही बार आपको मिला, लेकिन आपको वापस इस पे कुछ नहीं देना है. ये आपको समझ आएगा खर्चने के टाइम कि कैसे खर्चते हैं इसमें से. इसका मतलब रेवेन्यू रिसीट्स में वो चीजें आती है जो हमें, जो हमारी है, जो हमें वापस नहीं करनी. हाँ, जो हमें वापस नहीं करनी है, ठीक है, जिससे हम लायबल नहीं होते हैं. इसमें हम लायबल नहीं होते हैं. यू राइट. क्या क्या लिखा? Sale of government assets. हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट और लोन्स एंड बोरोइंग्स. थर्ड, फोर्थ, रिकवरी ऑफ लोन्स. रिकवरी ऑफ लोन्स. Recovery of loans. And don't think of grants with respect to your personal capacity. It is government, ठीक है.
आज आपने दिया, कल वो दे रहा है, परसों वो दे रहा है, तरसों वो दे रहा है, गवर्नमेंट के पास आता रहता है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास, आप अपने पर्सपेक्टिव से इसको मत देखो, सी इट एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कितनी डीलिंग्स होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ग्रांट्स मिलते हैं, उनका जो अपना बजट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, फाइनेंस कमीशन से हमने जो ग्रांट्स पढ़े, वो ग्रांट्स इधर जाएंगे, मिलते रहते हैं। What you have written? Couple of loans. Revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts में tax receipts है, non tax. Tax receipts में direct taxes and indirect taxes. इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या, इसमें direct taxes में subsume कौन कौन सा हुआ है, किसमें, GST में। उसके बाद capital receipts, once in a while receipts, payments जहाँ से आ रही है वो भी हमने लिखी। ऐसे ही लिखो आप बजट, लिखा, इधर लिखो एक्सपेंडिचर। खर्चा करेंगे अब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने लोन लिया, वो हम पे लायबिलिटी है कि हमारा एसेट है? वो हम पे लायबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम, हमारा मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने लोन लिया, वो लायबिलिटी है गवर्नमेंट पे। जो ये रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है, जैसे आपने इधर लिखा रेवेन्यू रिसीट्स, इधर आपने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे उसके नीचे लिखो ब्रैकेट में, ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूँ, राइट। Expenditures which neither create assets nor reduce liabilities. Expenditures which neither create asset nor reduce liability. तेल का छीम लगाना है, वो भी देखेंगे। ठीक है, ये revenue expenditures are those expenditures which are not used to create any asset or which is not reducing the liability of the government of India. Are you getting my point? Capital expenditures, उसके नीचे ऐसे ही लिखो, capital expenditures के नीचे expenditures which creates assets, expenditures which creates assets, expenditures which creates assets or reduces liability. मैं अगर ये लिखता भी नहीं reduces liability, it was understood. क्यों? एसेट जब क्रिएट होगा उससे कुछ कमाओगे, बात आ रही है समझ। आप मुझे सैलरी दे रहे हो, उससे गवर्नमेंट को जेब से ही जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। पेंशन दे रहे हो, किसी को जेब से ही जा रहा है। यहाँ से कुछ एसेट क्रिएशन हो रही है, हाईवे बन रहा है, अब टोल आएगा, उस पर पैसे आएगा, यू कैन पे वापस। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स के नीचे ये लिखा, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नीचे, अब इसके नीचे दो टाइप्स में, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट इधर मतलब है कुछ बनेगा नहीं, एसेट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन कुछ और चीज। डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल के अंडर जो ऑलरेडी आपका एसेट एक बार बन गया, आपने बना दिया एम्स, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन द एम्स, मेंटेन नहीं करना, समझा रही है बात। आपने मेट्रो लाई, रेल लाया, एक बार आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कर दिया, एसेट क्रिएट, अब उसको मेंटेन करना है डे टू डे बेसिस पे। मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर विल कम अंडर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेंटेनेंस का बनेगा कुछ नहीं नया, बनेगा इस खाते से, नया बन गया उस खाते से, उसको अब डेली मेंटेन करना है, उस डेली मेंटेन पे एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर यहां से आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, लेकिन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग के अंदर, राइट इन दिस मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, और इसी में लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर,
R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए ही रिसर्च कुछ हो रहा है। नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, या नया कुछ है टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स, इसरो का कुछ नया प्रोजेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर होगा, फिर इससे हमें कुछ रिजल्ट मिला, R&D से हमें मिल गया कुछ, हमें मिल गया कि हमें अब ये करना चाहिए। अब वो एसेट क्रिएट जब करेंगे, पैसा इधर से लाएंगे। समझ आ रही है बात? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फेज पे साइंटिस्ट को या उसमें जो खर्चा लग रहा है R&D करने में, वो इधर से आएगा। अब हमारे पास प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है कि अब भाई हमें ये करना है, इसको बनाना है, अब उधर उसको अब बनाना है, पैसा उधर से आएगा। दैट इज क्रिएशन ऑफ एसेट, वो पैसा इधर से आने वाला है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। समझ आ रही है बात? रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल। अब नॉन डेवलपमेंटल में क्या आएगा, जिससे कुछ डेवलपमेंटल का काम ही नहीं है, ठीक है? नॉन डेवलपमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस, ग्रांट एंड सब्सिडीज, LPG पे आपको सब्सिडी आती है, वो इधर से आती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से, क्योंकि उससे कुछ नया एसेट क्रिएट और उससे कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम नहीं हो रही है, हेल्प नहीं करता है लायबिलिटी रिड्यूस करने में, ठीक है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, लोन की पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है? दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट। नाउ देयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में यू राइट क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख सकते हो रोड्स, ब्रिड्ज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, हमें वो बड़ा वाला जनरेटर लाना है, ठीक है, किर्लोस्कर टाइप, बहुत ही बड़ा, उसको लाएंगे, हम पैसा खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब उस किर्लोस्कर को मेंटेन करना है, इसको डीजल डालना है ना रोज, एंड यू हैव टू सी द मेंटेनेंस ऑफ दिस, वो इधर से आएगा, ठीक है? क्या लिखा हमने? क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे कुछ डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रही थी ना, वो कैपिटल रिसीट में जा रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगी। ग्रांट रेवेन्यू रिसीट में जा रहा है, अगर ग्रांट दिया भी जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाएगा। समझ आ रही है बात? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोन्स टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स कहां से जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। लोन्स टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट वहां, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वहां, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। इस टेबल को ऊपर से नीचे तक फिर से देखो, एक माइंड मैप बना लो दिमाग में।
आपने जो पॉलिटी में बजट पढ़ा था, आपको लगा था बजट ने पीछे छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ने वाला। ठीक है डन। अब इसी टेबल को जो हमने अभी तक लिखा बनाया, इसको थोड़ी सी कुछ लाइंस में हम लिखेंगे, ठीक है। और राइट इट, हमने क्या बनाया, टू राइट रिसीट्स। रिसीट्स जो पहला वाला जो है उसको पहले डिफाइन करेंगे, रिसीट्स। गिव द हेडिंग रिसीट्स। Receipts. It includes all the money received by Government of India. It includes all the money received by Government of India. कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को समझ आ रहा है? It includes all the money received by Government of India. Full stop. They are further divided into revenue receipts and capital receipts. They are further divided into revenue receipts and capital receipts. They are further divided into revenue receipts and capital receipts. Give the heading revenue receipts. Revenue receipts. It includes receipts which are regular. It includes receipts which are regular. It includes receipts which are regular, revenue receipts. They are further subdivided into tax and non-tax receipts. Tax and non-tax revenue receipts. ठीक है? They are further divided into tax and non-tax revenue receipts. है कि नहीं है? जो हमने अभी मैप बनाया. Number 1, tax revenues. Everything which we just made, उसको हम define करेंगे. Tax revenues. It has all the taxes imposed by Government of India. It has all the taxes imposed by Government of India. It has all the taxes imposed by Government of India on the people and the businesses. Government of India on the people and the businesses. They are further subdivided into direct and indirect taxes. Isn't it? Yes, sir. They are further subdivided into direct and indirect taxes. We don't need to write the examples as that has been written in that map. ठीक है कि direct tax में क्या आएगा और indirect में क्या आएगा. Give the second heading इसी में non-tax revenue. Non-tax revenue. It is the recurring income of the Government of India. It is the recurring income of the Government of India excluding the taxes. It is the recurring income of the Government of जो आता रहता है excluding the taxes. Excluding the taxes. Full stop. It includes
फाइन्स डिविडेंड्स एटसेट्रा, छोड़ो ये लिखो फिर भी, इट इंक्लूड्स फाइन्स डिविडेंड्स एटसेट्रा। ठीक है, वो जीएसटी में क्या क्या है वो भी हमने लिखा। नाउ राइट कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स में ये था रेवेन्यू रिसीट्स, उसके दो टैक्स है नॉन टैक्स, टैक्स के भी दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर नॉन टैक्स, अब है कैपिटल। कैपिटल रिसीट्स, दे इंक्लूड रिसीट्स which are not regular in nature. They include receipts which are not regular in nature. Capital receipts, they include receipts which are not regular in nature. It creates liability or reduces financial assets. It creates liability or reduces financial assets. It creates liability or reduces financial assets. These can be statements आपके क्वेश्चन के, ठीक है, कि कौन सा क्या करता है। This creates liability or can reduce financial assets. आप देखो इसमें क्या आता है, disinvestment, sale of government assets, मतलब यही इसमें आता है, reduces the government assets और creates what? Liability, क्योंकि हम क्या लेते हैं इसमें, लोन भी ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? Full stop. Capital receipt, sorry, capital receipts are. Capital receipts are further divided into. Capital receipts are further divided into. Capital receipts are further divided into debt capital receipts and non-debt capital receipts. Debt capital receipts and non-debt capital receipts. Debt capital receipts and non-debt capital receipts. जरा कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आता है? लोन बोरोइंग, ये है लोन्स एंड बोरोइंग, पहला ही, इट इज ए कैपिटल डेट रिसीट। समझ में आ रही है बात? इससे कर्जा चढ़ता है आप पे। अब दूसरा पढ़ो, डिसइन्वेस्टमेंट, ये है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ, ये पैसा आ गया आपके पास, लेकिन आपको ये वापस पे नहीं करिए, आपका कर्जा नहीं, आपने कुछ अपने इन शेयर्स बेच दिए। समझ में आ रहा है? इसके भी दो, कैपिटल डेट क्रिएटिंग, कैपिटल नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है। और डेट क्रिएटिंग में यू हैव योर लोन्स एंड बोरोइंग्स, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आया समझ? एक्सपेंडिचर, ऐसे जैसे रिसीट्स लिखा, अब लिखो एक्सपेंडिचर। वी विल एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर पार्ट नाउ। It includes expenditure. It includes all the money spent by the government of India. It includes all the money spent by government of India. It includes all the money spent by government of India in performing various functions. In performing various functions. In performing various functions. It is divided into revenue expenditure and capital expenditure. It is divided into revenue expenditure and capital expenditure. It is divided into revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure. Give the heading revenue expenditure. These expenses are recurring in nature. ये तो होंगे ही होंगे डे टू डे बेसिस पे. These expenses are recurring in nature. These expenses are recurring in nature.
these expenses are recurring in nature. They cannot be varied much. इसमें आप change नहीं ला सकते हो. They cannot be varied much. Salary है ये तो देनी है, pension है ये देना है. They cannot be varied much. Day to day administration का काम है ये करना है. They cannot be varied much except in case of कब? Financial emergency. Very good. Except in case of financial emergency. Under Article 360 of the Constitution. Except in case of financial emergency. इसमें क्या आता है वो हमने लिखा है. We don't have to write that. वो चार्ट में हमने बनाया है. Next, capital expenditure. These expenses are undertaken. These expenses are undertaken. These expenses are undertaken for the creation of capital assets. For the creation of capital assets. These expenses are undertaken for the creation of capital assets and the socio-economic welfare of the people. And the socio-economic welfare of the people. And the socio-economic welfare of the people. ठीक है. टाइम क्या है? ये समझ आया व्हाट यू हैव रिटन? ठीक है. इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट डेफिसिट्स. उसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है समझने की. मुझे लगता है आज के लिए आपके लिए इतना काफी है. पहले इतना समझ लो, इसको दिमाग में बिठा लो. अब इसका एनालिसिस करेंगे हम. ठीक है. दिस ऑल फॉर टुडे.